ऐसा कहते हैं कि इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग न्यू देन यू हैव टू स्टॉप डूइंग समथिंग ओल्ड। शायद इसी सोच के साथ मुझे लगता है ईशा जी आपकी कंपनी और आपने ये सोचा कि चेंज द टिकट साइज ऑफ नासिक सिटी। तो गोविंद नगर में आपका जो 3 लीव्स आ रहा है, आई थिंक द फ्लैट स्टार्टिंग फ्रॉम 10.5 करोड़ ऑनवर्ड। तो मुझे लगता है कि आपने तय कर लिया था कि मुझे नासिक को टियर 2 से टियर 1 में लाना या उसकी टिकट साइज़ काफ़ी बड़ी साइज़ में चेंज करनी है। तो इसके पीछे कुछ विजन था या सालों की मेहनत थी, क्या था एग्जैक्टली? Thank you. So, सबसे पहले तो Deepak Builders and Developers is into the market since 36 years. And Three Leaves is a project which was at a price point of around 4.5 CR. And when we launched it into the market, it had already sold like on a very good capacity, like 80%. And that's when we saw that Nasik is now ready for this ticket size and this price segment and market. And that's when our CEO, Chairman, Mr. Deepak Chande, had the vision to bring it and to launch and come up with a new project called Apex, which is going to be priced at 12.51 CR. And it's really a proud feeling to say it today that just before the launch, it has only exclusive 42 units, out of which 7 are already sold. So, thank you. So the vision is that knowing that Nasik is ready, having the numbers intact, seeing that Nasik is now onto the stage of coming and escalating it to the next part, we feel that Apex and Nasik is now ready for such a price segment. Yeah. Okay, great. My next question is for Upendra sir. सर जैसे इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि नासिक बेस्ड कंपनी है, फिर भी बहुत जगह पे आपके ब्रांचेस है, काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है और एम्प्लॉयज़ भी है 600। आज तक मुझे लगता है यहाँ जो एंटरप्रेन्योर बैठे हैं वो भी कहेंगे कि एक ही जगह पे एक ही सिटी में भी अगर 2-3 ब्रांचेस होती है या 2-3 ऑफिसेस होते या मोर देन 500 एम्प्लॉयज़ होते तो इट्स काफ़ी दिक्कत हो जाती कि हाउ यू कैन मैनेज, और उसमें इंट्रा चैप्टर बोलो या फिर इंट्रा ब्रांचेस बोलो मैनेजमेंट करना, तो आप इसे कैसे करते हो? So good afternoon everybody. Myself Upendra Dinani. I represent DVJ Pharma Nasik. I am the second generation entrepreneur and my organization is 50-year-old organization. Every time when we meet our team, they always say that कि हमारी ब्रांच अगर मुंबई में रहेंगी तो हम और ग्रो कर सकते हैं। तो मैं उनको एक ही बोलता हूँ कि MH15 ब्रांड जो है उसको हमको अक्रॉस इंडिया लेके जाना है एंड टेक्नोलॉजी इज सच थिंग दैट इट डजंट मैटर आप बॉम्बे से बिजनेस कर रहे हो या नासिक से कर रहे हो। As we manage 600 plus employees, I firmly believe that name of the organization is national. At the end of the day, organization is a human partnership. आपके साथ जितने आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, प्रमोटर एंड एम्प्लॉयज ये दोनों की ही एट द एंड ऑफ द डे पार्टनरशिप होती है। Whether your organization will grow or not, it will be decided by promoters जो पेस में ग्रो हो रहे वही पेस में आपके साथ जो आपके एम्प्लॉयज है, whether they are also growing, by all means, that decides the success of the organization. Otherwise, managing 600 employees is a gigantic task. But अगर आपका पर्पस सही है तो मैं फर्मली बिलीव करता हूँ कि व्हेन योर ऑर्गेनाइजेशन इज मोर देन 50 प्लस एम्प्लॉयज, आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्ट शुड बी अलाइन विद द दैट ऑफ अ नेशन। नेशन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वही ऑर्गेनाइजेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल of working for you, in nation में भी यही होता है।
उनके एस्पिरेशंस को मीट करना है, उनके जो नीड है उसको हम कैसे मीट कर सकते हैं. कंपनी के बारे में जब आप कुछ प्लानिंग करते हो, कुछ अलग करने की सोचते हो, तब एम्प्लॉय का ओपिनियन लेते हो या क्या होता है? द प्रोसीजर इज व्हाट? So our company management is very grounded, and let me tell you, disagreement is the foundation of our organization. So even smallest of the employee can disagree with us, with the management, and if he is right, we have to accept it. So that is the foundation of our organization, and we very often meet on our management meeting. We meet our management people. We have a management team of around 30 people who are managing our entire show. It's a people-driven organization. थैंक यू सर. विजय कुमार जी, आपके लिए क्वेश्चन है. हमने जब बात की थी तब आपने बोला था कि 18 साल से आप बिजनेस कर रहे हो. 18 साल के उम्र में 18 साल की उम्र से आप बिजनेस कर रहे हो. तो अब तक जो ये अचीवमेंट है, ये पूरा सफ़र है, उसमें हार्ड वर्किंग तो होगा ही. ऑफ कोर्स हार्ड वर्किंग के वजह तो कुछ नहीं हो सकता. लेकिन मुझे जानना है कि ऐसे कौन से मेजर फैक्टर थे ये पूरी जर्नी में कि जिस पे आपने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि ये मुझे चेंज नहीं करना है कुछ भी हो जाए? ऐसे कुछ फैक्टर थे? लाइक हिंट देती हूँ मैं आपको. जैसे आपने बोला था कि एक इनपुट आपका जो रॉ मटेरियल होता है उसकी क्वालिटी हो. ऐसे कुछ फैक्टर्स हमें बताओ ताकि बाकी एंटरप्रेन्योर को भी ये पता चले कि अगर आगे भी जाना है, लॉन्ग लास्टिंग अपना बिजनेस करना है, तो हम किस चीज़ पे डटे रहे. लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस के लिए तो आपको क्वालिटी नंबर 1 होना चाहिए. आपका मटेरियल जो भी होगा वो जीरो रिजेक्शन पे आप सप्लाई करने की आपकी कैपेसिटी होना चाहिए. आजकल जो मॉडर्न युग में अगर आपका रॉ मटेरियल 3 बार रिजेक्ट होता है तो आप ब्लैक लिस्ट में जाते हो, तो सामने वाली कंपनी से आपका नाम ऑटोमेटिक कट जाता है. तो क्वालिटी के लिए आपको क्वालिटी मशीनरी लगेगी, क्वालिटी रॉ मटेरियल लगेगा, क्वालिटी स्टाफ लगेगा, और ये सब चीज़ें हम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हमने बनाई है और उसमें ये सब चीज़ों का हमने ध्यान रख के आज हम नियर अबाउट 25 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी करते हैं. वी आर अ निश मार्केट प्लेयर और हमारे सब प्रोडक्ट निश प्रोडक्ट्स हैं. और इन इंडिया में जो भी या वर्ल्ड में कुछ लिमिटेड लोग जो है ऐसे जिसमें हम हैं. आपने एम्प्लॉय के बारे में जो बताया कि क्वालिटी वहीं से होती है, एम्प्लॉय हो या इनपुट मटेरियल हो, वट एवर इट मे बी. तो जो एम्प्लॉयज़ आपके पास आते हैं तो आपके यहाँ उनको कुछ खास तरीके से ट्रेन किया जाता है या फिर आप ट्रेंड लोगों को ही प्रेफर करते हो? एक्चुअली हमारा एक उद्देश्य है कि मालेगांव के आजू बाजू में जो भी देहात है वहाँ से सब मेरे वर्कर्स हैं. मेरे कोई यूपी बिहार से वर्कर्स नहीं हैं. एक्चुअली लोकल टैलेंट बहुत है. आपको एजुकेट करना चाहिए उनको, और उनको अगर आप समझा के देते हैं तो वो आपकी इम्पोर्टेड मशीन्स भी बहुत अच्छी तरह से चला सकते हैं. तो हम लोगों का कभी भी एक ही रहा है कि हम लोग आजू बाजू के देहात के लोगों को ही लगाएं और उनको उनकी फैमिली लाइफ भी उनके साथ उनको मिलती है. दे कैन एंजॉय द फैमिली लाइफ. ये भी हमारा उसके पीछे एक उद्देश्य है कि भाई तुम जहाँ से पैसे कमा रहे हो वहाँ पे आप काम दो. एग्जैक्टली मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है. नॉर्मली हम लोग भी इस पे सोचते हैं कि अगर लोकल टैलेंट को हम लोग हायर करते तो दोनों बात होती है, हमें भी अच्छी सर्विस मिल सकती है और सेकेंडरी सर ने जो बताया इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल उसकी काफ़ी ज़रूरत है कि फैमिली लाइफ, क्योंकि बहुत ऐसे हमने लोग देखे हैं कि फैमिली लाइफ मीन्स नहीं जी पाते, बाहर रहते, दूर रहते हैं, तो फिर शायद तब काम में उनका कंसंट्रेशन नहीं हो पाता. तो लोकल ज़्यादा लोगों को हमने चांस देना चाहिए, अपने कंपनी में हो या फिर बाकी सर्विसेज में हो. दिस वाज नाइस वन. ईशान, नेक्स्ट वन इज़ फॉर यू. ऐसे बोलते हैं कि क्रिएटिविटी जस्ट कनेक्टिंग थिंग्स.
तो जितना हम लोग मिले तब से हमने देखा या फिर अभी प्रेजेंटेशन ने भी देखा हमने कि आपके बिल्डिंग में क्रिएटिविटी दिखती है। पहले ऐसे बोला जाता था कि लाइक क्या बोलते हैं ना, सीमेंट वाला चीज़ है, बिल्डिंग मटेरियल में ड्राई सेक्शन, तो वैसे नहीं लगा। आपके सब प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएटिविटी से भरे हुए लगते। तो सो हाउ डू यू बैलेंस क्रिएटिविटी इन रियल एस्टेट सेक्टर? Nice question, thank you. First of all, when we see a project or any vastu that we are doing, हम लोग दो types की creativity पे focus करते हैं. So one category is visual creativity, and another is when we talk about the moments, the feeling that it creates. And I think creativity itself is a differentiating factor. It creates the difference between just constructing a building and creating a place that people fall in love with. So the idea is that everyone entering into the building or calling it their home should fall in love with that place. And for example, if it's a building or it's a balcony in a home and आप आपका birthday celebrate करने वाले हो, तो आप सबसे पहले you will see कि how are you going to feel in that ambience. So our focus is on creating better designs, and then you start flowing that, okay, how will the ambience be? How will the light fall? How will the curtains be? What is the exterior? What is the interior? And in all these aspects, we want to bring that feeling that you call it your own. Like yesterday, I was in Delhi doing these architectural lights meetings for a hotel, and there was a very tough debate between the consultants and the vendors and the operators saying that acha, iska lux level should be 3,000, and the consultant and others are saying it should be 2,700. Now, why 2,700 and why 3,000? 3,000 is good enough, but economical price-wise, but 2,700 is what defines luxury and feeling. So as a price point also, how do you protect the vision, backing it up with the deadlines, the targets, and the budgets is where creativity also needs to be protected. So I think that's where the balance is important. You have this day in, day out discussions, but how do you protect creativity is something that you should focus on when we need to talk about the balance of it. एक्चुअली जब देवश्री ने प्रेजेंटेशन दिया था तो काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आया होगा, तो मैं अभी आपको पूछती हूँ कि ये जो आपका 3 यूज़ प्रोजेक्ट है या फिर गोविंद नगर में जो आपका लेविश स्कीम है, तो सब लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं इतना बड़ा टिकट साइज़ तो अपने यहाँ नहीं मिलेगा, शायद बाहर से इन्वेस्ट होगा। तो मुझे पूछना है, या नासिक से भी उसके लिए बायर है? Obviously है, in fact नासिक से plus जलगांव and धुले and other areas are investing and purchasing from Apex and 3Leaves both. So yes, the audience is ready, I think. तो मुझे लगता है ऑडियंस ने जाके देखना चाहिए। यस, दीना जी आपके लिए आगे क्वेश्चन है। तो मुझे पूछना था कि फ़िलहाल सभी का ये प्रॉब्लम है सक्सेशन, कि काफ़ी बिजनेस फर्स्ट एंटरप्रेन्योर थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं लेकिन अच्छी लेवल पे बिजनेस ले जाते, सेकंड काफ़ी ऊंचा ले जाते हैं या फिर उसे मेंटेन करते, लेकिन कभी कभी उसके बाद बिजनेस निकल जाता है या फिर कुछ इंटरेस्टेड। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे कि वो बोलते हैं कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है पापा के बिजनेस में या मम्मा के बिजनेस में, लाइक दैट। तो फिर आपकी तो मुझे 3rd जनरेशन एंटर हो रही है अभी दिनानी इसमें, तो वो मुझे देखना है कि उसके लिए फिर खास एफर्ट्स लिए गए आपकी तरफ से या कुछ अपने विजन किया था? क्योंकि हमें कुछ लेक्चर में से बोला करते थे कि आप घर में बिजनेस के बारे में बहुत अच्छी तरह से बात कीजिए, नहीं तो फिर आपके जो बच्चे हैं वो उसके लिए निगेटिव हो जाएंगे। तो आपके यहाँ तो काफ़ी सब आपके नेक्स्ट पीढ़ी उसी बिजनेस में आ रही है, तो उसके लिए आपने क्या खास एफर्ट्स लिए थे? First of all, succession is never automatic. It is always planned. बहुत साल पहले मैंने एक फेमस राइटर है गीता पीरामल, उसकी एक बुक पढ़ी थी महाराजास ऑफ इंडिया, इन विच शी प्रेजेंटेड अ सर्वे ऑफ इंडियन बिजनेस। 75% ऑफ द बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं वही बंद कर देते हैं। Another 20% business runs to the second generation. Hardly 3 to 4% business है जो 3rd generation तक जाते हैं।
एंड जनरेशन टू जनरेशन चलने वाले बिजनेस तो लेस देन 1% है. सो दिस इज अ रियल स्टोरी कि एक बिजनेस की लॉन्गेविटी कितनी है. I had opportunity to attend one conference in family business at ISB Hyderabad. One of our pharma company owner represented in that meeting. He was from Germany, Merck company. Merck is the oldest company, and that company is owned by family since last 350 years. But managing the company and owning the company is a different thing which I learned there. So our succession, they are trained, they are groomed in such a way. Whenever our periodical meetings were there, they used to attend. They were attending our meetings. But one thing is that in your succession will come only when he is allowed to fail. I have failed so many times. But मैं उसको बोलूँगा कि तू ये मत कर, ऐसा नहीं होता है. I have to give free hand to him. मैं भी कुछ सीखा हूँ तो फेल होके ही सीखा हूँ. So I should allow him to also fail and learn his own lessons. मैं कुछ बताऊँगा उससे वो सीखना नहीं है उसका. So most of the time एक देखा गया है कि फादर अपने बच्चे को लिमिटेड पावर दे रहा है, उसको फेल नहीं देगा, या उसके अपने को लग रहा है कि बच्चा बिजनेस चला लेकिन फादर ने पीछे से कॉलर पकड़ के रखा है. दैट शुड नॉट बी द केस एक्चुअली. उसको फ्रीडम देना पड़ेगा उसको फेलियर का. लेकिन ओनली थिंग मॉर्निंग सेशन में जब हम इसका सुन रहे थे कि भी मिस्टेक हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिपीटेशन ऑफ द मिस्टेक इज नॉट. सो फॉर मी failed is an unsuccessful attempt, but failure is a deficit of efforts. So I always tell my succession कि fail हो गए तो कोई problem नहीं, failure नहीं होना है हमको. Failure reminds us of a deficit of efforts. So again उनको अपने हिसाब से करने के लिए freedom होना चाहिए. That is a way you bring your succession into your business. Again, घर का ही मैन पावर है, इसके लिए उसको फ्री में यूज़ कर लो ऐसा नहीं है. सुबह जो कचूरिया साहब ने बोला कि ओनर मस्ट ड्रॉ द सैलरी, सिमिलरली आपके जो सक्सेशन है दे शुड बी ऑल्सो इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन देयर टैलेंट कंपेरेबल विद द मार्केट. You should be able to afford them in your business because they are going to take your business to the next level. लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर ऐसा नहीं होना चाहिए. दैट शुड नॉट बी द केस. दे ऑल्सो शुड नॉट फील दैट कि मैं इसके बाहर रहता तो मैं इससे और ज़्यादा पैसे बना सकता था, लेकिन मुझे पापा ने फोर्सफुली यहाँ रखा तो वो ज़्यादा वर्क नहीं करता है. दैट डजंट वर्क मोर. सो रिम्यूनरेशन साइड ऑल्सो यू शुड बी कंपेयर देम विद एज आप कोई बाहर से कोई प्रोफेशनल को हायर करते हो, उसको जितना पेमेंट दे रहे हो उसके हिसाब से ही उसको भी मिलना चाहिए. That should be your strategy also. Great sir. विजय जी, मुझे आपको ये पूछना है कि जैसे आपने बताया था कि मालेगांव बेस्ट कंपनी है आपकी और आप काफ़ी एंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हो, ओके. तो अभी बाहर जाना है, इतने सारे डिफरेंट मीन्स रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है, तो उसके लिए फिर टेक्नोलॉजी शायद आती होगी या कंपलसरी है. तो नॉर्मली जैसे अभी ये क्वेश्चन है जो सर से पूछा था मैंने, उसको लगातार है कि जो फर्स्ट एक 20-25 या 30-35 बैक जाओ आप, तो वो टेक्नोलॉजी का बिल्कुल यूज़ नहीं करते थे और आप काफ़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है. तो ये आप कैसे मैनेज करते हो, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना, सेकंड जनरेशन का आइडियाज़ लेना, मीन्स उसके साथ ही वाला ये क्वेश्चन है. तो इसमें आप कैसे करते हो? मेरी फैमिली 3 भाइयों की है. वी हैव अ जॉइंट फैमिली. हम रहना अलग है, बिजनेस एक है. और लॉन्ग टर्म फैमिली चलने के लिए जनरली क्या होता है कि पहले पीढ़ी में आता है, दूसरे पीढ़ी में रहता है, तीसरे पीढ़ी में चले जाता है. ये जो विशेष सर्कल हर फैमिली में है उसको अपने को ब्रेक करना चाहिए. तो कैसा आप ब्रेक करोगे? तो आपकी 4th पीढ़ी 5th पीढ़ी फिर आगे चलेगी.
तो उसके लिए हमने पहले तो क्या है कि जॉइंट फैमिली में फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बना ली। मैंने फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद इतना ट्रांसपेरेंसी हर एक में आ जाता है कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, मेरे को बच्चे नहीं होगा तो मेरा क्या होने वाला है, हर चीज़ का हमने हमारे फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज़ हमने डाली है कि जिससे फैमिली लॉन्ग टर्म चले। जैसे जर्मन की बोरिंगर मैनहैम कंपनी जो है, जिसमें 90 लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वो कंपनी का एक भी बाहर से पैसा नहीं है और उसकी 10 कंट्री में उसकी कंपनी है, तो वो कैसे चलती है? एक्चुअली इससे देखने गए तो इंडिया में जॉइंट फैमिली चलना चाहिए, फॉरेन में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम भी चला सकते हैं। उसको हमने मॉडर्न सिस्टम से काम करना होगा, हर एक को डिवीजन ऑफ वर्क देना होगा, हर एक को सैलरी देनी होगी और आस्ते आस्ते आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट में जाना होगा। तो हमारे यहाँ भी हम लोग अभी प्रोफेशनल मैनेजमेंट में जा रहे हैं और हर महीने को मीटिंग होती है। फिर फैमिली साथ में रहने के लिए आपको विश्वास और प्रेम, 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो वो आपको कैसे मैनेज करना है? भाई महीने में एक बार साथ में जाओ, होटल जाओ, घूमने जाओ, 6 महीने में एक बार पूरी फैमिली अपने सिस्टर्स को, बुआ को, इनको लेके साथ में रहो। तो इससे क्या होगा कि आपका फैमिली का एक दूसरे के बारे में प्रेम, विश्वास बढ़ेगा। और फैमिली फिर कैसे होता है कि जॉइंट फैमिली में कोई भी ओवर बर्डन नहीं होता है, हर डिवीजन ऑफ वर्क हर जगह पे हो जाती है और ऐसे करके हमने हमारा बिजनेस बढ़ा है। साथ में अभी हम लोगों ने वर्ल्ड क्लास सब मशीनरी हमने अभी फिट की। मेरा प्लांट जो है, मेरे यहाँ साल में नियर अबाउट 100 कंपनीज ऑडिट को आती है। तो आवाज़ आती है? हाँ। तो मेरे यहाँ नियर अबाउट 100 कंपनीज का ऑडिट होता है। तो हम लोग ये ऑडिट के वजह से बहुत अपडेट हो जाते हैं और हम लोग जब जीरो रिजेक्शन पे काम करेंगे तो हमको वो हिसाब से डॉक्यूमेंटेशंस भी हमको करने पड़ते हैं। जैसे मेरे एक प्लान में 10-10 हज़ार पेजेस के डॉक्यूमेंटेशंस हैं। तो ये सब हम लोग क्यों करते हैं कि हम नहीं करेंगे तो दूसरा करेगा, वो बिजनेस ले जाएगा, तो हमने क्यों नहीं करना चाहिए। फिर हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं कि अपने कॉम्पिटिटर को हर्डल्स पैदा हो। जैसे अभी शुगर में हमने ड्रग लाइसेंस लिया, कोई लेता है शुगर में ड्रग लाइसेंस? कोई नहीं लेता है। जैसे अलग पार्टिकल साइज की शुगर चाहिए, कोई देता नहीं, हम देते हैं। जैसे अभी हमने एक मैनिटॉल है, वी इम्पोर्ट द मैनिटॉल, वी स्प्रे ड्राइड मैनिटॉल। एशिया पैसिफिक में हम अकेले प्लेयर थे। ये हमने स्प्रे ड्राइड फैसिलिटी इन हाउस डेवलप किया और इसको यूएस के कंपनी को, इंग्रेडिएंट को हमने इसको बेच दिया। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मॉडल कि भाई आप नया बनाओ, कोई फॉरेन कंपनी को ज़्यादा पैसा लेके दे दो, जैसे आपको 10 साल लगेंगे वो आप 1 साल में पैसे कमा लेते हो। ये भी एक मॉडल है। जैसे हम शुगर स्पीयर्स बनाते हैं, शुगर स्पीयर्स में वी आर द 4th रैंकिंग इन द वर्ल्ड। हम यूरोप में भी और यूएस में भी मेरा मार्केटिंग मैनेजर है जो वहाँ से ऑर्डर लाके कंपनियों को देता है। तो इस तरह से भी हम लोग काम करते हैं। तो टोटली मेरे यहाँ जो हमारी न्यू जनरेशन है वो बहुत हार्ड वर्कर है, बहुत सिंसियर है और एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड है। तो ये हमारे यहाँ काफ़ी प्रोडक्ट्स हम न्यू डेवलप करते हैं। और जैसे अभी हमने एक प्री जिलेटेड स्टार्च एक नया शुरू किया है, अभी नया प्लांट शुरू हुआ है, जिसमें हमने क्वालिटी ऑफ द प्री जिलेटेड स्टार्च, यूएस की जो इन कलर कॉन कंपनी है उसकी नंबर 1 क्वालिटी है, वो क्वालिटी हमने अभी मैच की है। तो जब मेरी क्वालिटी होगी तो मेरे पास बिजनेस का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस तरह से हम बिजनेस डेवलप करते हैं। और माने हमारा एक प्रिंसिपल पे हम काम करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट निश मार्केट का हो, टेक्निकल हो और हाई मार्जिन का हो। ये 3 चीज़ पे हम लोग काम करते हैं। तो इसके लिए ग्रोथ इज नो लिमिट। और हम मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हमने क्या नया प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए, इसके लिए आपको अलग अलग जो CPI चैन है, फार्मा का जहाँ एग्जीबिशन होते हैं, ऐसे अलग अलग एग्जीबिशंस में आपको पार्टिसिपेट होना चाहिए। वहाँ से भी आपको काफ़ी फीडबैक मिलता है
और उसमें फिर आप नया प्रोडक्ट डेवलप भी कर सकते हो। ग्रेट सर, मीन्स आप बात कर रहे हो कि अगर टाटा ब्रांड जैसी लिगेसी हमें बनानी है अपने बिजनेस में, तो काफ़ी फैमिली फ्रंट पे या बिजनेस फ्रंट पे भी हमें काम करना होगा और धीरे धीरे उस तरीके से काम करके फिर आगे ले जाना पड़ेगा। ग्रेट। ईशा, आपके लिए क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आप नासिक ला रहे हो, तो इट विल बेनिफिट फॉर नासिक? Yes. So we are coming up with World Trade Center, which is an affiliation plus a direct partnership and association with World Trade Center headquarters, New York. And why is Nasik ready? Because Nasik was already ready, I think. Because number one, we have the infrastructure, we have the manufacturing hubs, we have the aerospace ready, we have agriculture, we have wine, we have all the things around, but we did not had a central ecosystem till date for the right exports, right platform, a right global destination, a global address, where everything will be under one roof and an interconnecting point. So I think Nasik deserves a global platform, a global destination and address, where if we see Mumbai World Trade Center, there are all high-end foreign embassies, international offices, a platform for our Indian chains and brands having their offices, their head offices there, and it's a perfect platform to export. And Nasik ke paas sab kuch hai, but it did not have that platform. So we felt that, it is really a best thing to Nasik, and it is a proud moment for Nasik because soon we will see how it is going to affect the business affairs and the foreign affairs and export affairs in and around Nasik. Now with the port also coming up near and the Samruddhi Expressway also bringing that connectivity. So now we also have the connectivity. World Trade Center gets the platform there. So yeah. यस, डेफिनेटली मुझे लगता है नासिक को अब एक अलग लेवल पे देख पाएंगे, तो क्रेडिट तो आपको जाएगा ही। यस, अभी लास्ट 2 क्वेश्चंस मेरी तरफ से, एक विजय जी के लिए। जैसे ना हम जब भी कुछ कठिनाइयों का सामना करते हैं ना लाइफ में, तो जो एक्सपीरियंस है, बुजुर्ग लोग हैं, वो हमें बोलते हैं कि इसका आंसर आपको भगवत गीता में मिलेगा हमेशा। तो हम लोग बात कर रहे थे, तब सर ने मुझे बताया कि वो ऐसा एक बुक लिख रहे, बिजनेस गीता करके। तो मैंने बोला दिस इज़ इंटरेस्टिंग, मीन्स लिटरली मुझे भी क्यूरियोसिटी है, और मैं सर को बोलूँगी कि जब पब्लिश होता है तो ज़रूर हमें बताइए, हम सब लेने वाले हैं। तो उन्होंने बोला कि बिजनेस गीता मीन्स व्हाट, उन्होंने कैसे बोला था कि उनके जो सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, उनको कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते हैं, तो कैसे बताए, तो वो तो वहाँ के वहाँ गाइड कर देते थे। लेकिन ऐसा सोचिए कि अगर हमारे सेकंड या थर्ड जनरेशन को प्रॉब्लम आता है तो फिर क्या करें, तो शायद ये वाला बुक हमें हेल्प करेगा। तो सर प्लीज़ थ्रो सम लाइट ऑन इट। So, Business Gita is a principle of business, and Bhagavad Gita जो है वो principle of life है. That is why I have kept my book's title as Business Gita, on the principle of business and not on the principle of Bhagavad Gita, which is the principle of life. So while working with succession and quarterly meeting with my team, every time ऐसा होता था कुछ प्रॉब्लम आया तो मैं उनको बिजनेस का कुछ एक प्रिंसिपल बताता कि ये प्रिंसिपल पे आपको बिजनेस चलना चाहिए, इसकी वजह से आपको ये इश्यूज आ रहे हैं ऐसा। देन सक्सेशन ज्वाइन किया, उसके बाद तो वेरी फास्ट सब इश्यूज सामने आते थे। एवरी टाइम जो भी कुछ स्ट्रगल आती थी, दे वर मिसिंग सम बिजनेस प्रिंसिपल्स, और फिर मैं उनको कुछ बताता था ये प्रिंसिपल के थ्रू जाएंगे तो ये इश्यूज नहीं आएगा। मैं ये सिचुएशन को ऐसे देखता था कि आई डोंट कंपेयर माई सेल्फ विथ श्री कृष्णा, ऐसा ये तो आई एम अ डिसिपल ऑफ श्री कृष्णा, बट आज की जो यंगर जनरेशन है, एंटरप्रेन्योर्स है, आई कंसिडर देम एज अर्जुना। अर्जुना बहुत होशियार था लेकिन कंफ्यूज था, एंड श्री कृष्ण guided him कि how to go ahead. He was not ready for war, but श्री कृष्ण ने जब उसको गीता बताई तभी वो वॉर के लिए रेडी हुआ।
सो मैं ऐसे समझता हूँ कि ये जो यंगर एंटरप्रेन्योर्स है, दे आर, आई फाइंड देम सेल्व्स एज अर्जुना, दे आर वेरी ब्रिलियंट, बट जो कन्फ्यूजन है उसको अगर मैं एक साथ में बिजनेस के प्रिंसिपल लिख के मैं अगर बताऊँ उनको, सो इट कैन हेल्प देम। और मैं बुक भी ऐसे लिख रहा हूँ कि बुक का कोई भी पेज ओपन करेंगे तो उनको कुछ ना कुछ उसमें लर्निंग मिलेगा। बहुत बढ़िया। The signature learning, if I want to share, I have to share. Your success depend upon your ability to identify person around you who can fail you. अभी आप बोलेंगे कि आप अगर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको आगे गोल अचीव करना है, लेकिन अगर आप पर्सन आइडेंटिफाई करेंगे पहले कि आपके गोल के साथ जाने वाले लोग कौन नहीं है, उसको अगर आप बाहर निकालेंगे तो आप ऑटोमेटिक आपका गोल जो है वो अचीव कर सकते हैं। द बिगेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का अगर सक्सेस अगर आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल फाइंड दैट कि उन्होंने अपनी टीम में ऐसे ही परफॉर्मर लोगों को ही रखा है, नॉन परफॉर्मर को धीरे से वो बाजू में कर रहे हैं और ही इज एबल टू डिलीवर दैट। तो दिस इज हाउ, जैसे अभी मॉर्निंग में वर्किंग कैपिटल के ऊपर बात कर रहे थे तो मैंने बिजनेस के ऊपर एक ऐसा थॉट लिखा है कि बिजनेस ऑफ बिजनेस इज टू डू द बिजनेस, द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज टू जनरेट प्रॉफिट, जैसे सर ने बोला। बट प्रॉफिट इज जनरेटेड नॉट व्हेन सेल इज डन, इट इज ओनली व्हेन रिकवरी इज फिनिश्ड। सो मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स सेल करने में बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, लेकिन जब तक रिकवरी नहीं आती है तब तक आपके पास प्रॉफिट भी नहीं आता है। एंड इफ यू आर नॉट रिकवरी फोकस्ड यू आर गोइंग टू स्ट्रगल विथ योर वर्किंग कैपिटल। तो कब तक आएगा आपका ये बुक? So I have planned to publish it on my 60th birthday. On September, I am completing my 60 years. So that is give back to the society again. ग्रेट सर, ग्रेट सर। अभी लास्ट 2 क्वेश्चंस लेते हैं। विजय जी, आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन है। पहले आपने बताया था वाइल मॉर्निंग, बट मुझे लगता है तब जिन्होंने मिस किया था, क्योंकि फ़िलहाल सबको पता है कि डायबिटीज़ ये ट्रेंडिंग बीमारी है। मोस्ट प्रॉब्ली सब घर में कोई ना कोई उससे पीड़ित होता ही है। तो जो आपका जो प्रोडक्ट है एंटी शुगर, उसके बारे में संक्षिप्त में बताइए। हमारा नया प्रोडक्ट एंटी शुगर के नाम से हमने अभी शुरू किया है, 2 साल हुए इसको। एक्चुअली डायबिटीज़ का परसेंटेज लोगों में बहुत बढ़ रहा है, काफ़ी लोग डायबिटिक हो रहे हैं। और आप जो अभी शुगर फ्री प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसका 96% मार्केट शेयर है, वो शुगर फ्री लेने से भी शुगर बढ़ती है। ना डॉक्टर को पता है ना पेशेंट को पता है, मगर शुगर बढ़ती है। तो उसके ऊपर हमने काफ़ी काम किया और हमने एक नया प्रोडक्ट लाया एंटी शुगर। एंटी शुगर में शुगर बढ़ती नहीं है, हम टेक्निकली प्रूव करके देते हैं। और ये प्रोडक्ट विदाउट हैंड टच है। आप टैबलेट लोगे, अपना एक डब्बी होगा, उसको पुश करो, टैबलेट गिरेगा। या आपको पाउडर लेना है तो उसको बॉटल को उल्टा करो, उसको प्रेस करो। WHO ने रिकमेंड किया उतना ही जो हमारा एंटी शुगर है वो गिरेगा। यानी किसी के भी शरीर के साथ खिलवाड़ करने का हमें अधिकार नहीं है। ये प्रिंसिपल पे हम काम करते हैं और वो हिसाब से एंटी शुगर के जो प्रोडक्ट्स है वो हिसाब से ही लाए हैं। और अब ये आस्ते आस्ते इसका मार्केट शेयर बढ़ रहा है। और इसके साथ अभी हमने, जैसे अभी हम लोग आस्ते आस्ते फार्मास्यूटिकल एरिया में भी हम लोग जा रहे हैं, तो हमने एक एसिस्टिक नाम से एक एसिडिटी के लिए एक सिरप लाया है। अभी 16 अप्रैल को ही उसको लॉन्च किया है। और अभी ऐसे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हम आयुर्वेदिक, एलोपैथी, इसमें भी काफ़ी अभी हम लोग प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। विद द रेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स विल कम सून। तो इस तरह से हम लोग काम करते रहते हैं। थैंक यू सर। मुझे लगता है ये काफ़ी उपयुक्त होगा। फर्स्ट क्वेश्चन भी ईशा को पूछा था, लास्ट क्वेश्चन भी ईशा को पूछती हूँ। सो व्हाट डज इंडिपेंडेंस मीन्स टू यू एज अ सेकंड जन एंटरप्रेन्योर एंड अ वुमन? I think independence for me means movement. Movement in business, movement in life, movement in activities, movement in family.
everywhere, if there is movement on an active basis, it means independence. So, as a second generation entrepreneur, all three of us have been making movement. We have been consistent with implementing the beliefs, practices which our father have inculcated in business and everywhere. And that is what makes us achieve that sense of independence every day. And second, as a woman, I think the field is somewhere where you have to make a mark every day, yes. But independence comes from how you are elevating your space by what achievements you're bringing on the table. And I don't think the line will be more, it's a blurred line anyways, because it all depends on how you are making your mark through movement. So yes. आपल्याला मगाशी पल्लवी मॅडमनी पण सांगितलं होतं की लेडीज असल्याचा वुमन असल्याचा त्यांना फायदाच झाला होता आणि माझ्या व्यवसायात पण मला तो होतो म्हणजे जिथे वुमन बॉस असते एक तर मल्टीटास्किंग असतं क्रिएटिव्हिटी असते जेंट्समध्ये पण असते सॉरी टू से पण लेडीजमध्ये मला असं वाटतं थोड्या जास्ती प्रमाणात असतं सो खूपच छान असं तुमच्या सगळ्यांकडनं मलाही खूप छान शिकायला मिळालं आणि मला असं वाटतं आपल्या एंटरप्रिनरला पण शिकायला मिळालेलं आहे. So ladies and gentlemen, put your hand together for these fabulous three personalities. Thank you so much. Now it's time to Sanjay. Yeah, so I think incredible session here with very distinguished people from Nasik, Vijay Kumar Loda from MB Sugar, Upendra Bhai Dinane, and Ms. Chande. They have done incredible job, very well-known people, very distinguished people. So let's appreciate with the token of appreciation with the memento.